Hello everyone. You continue the last questions on differentiability. This is question number 5. So we have to differentiate this function. This is a quotient of two functions. So we will use this formula here. U upon V, P of U upon V are two function. So their derivative, combined derivative of there will be differentiate of numerator into V minus u into v dash divided by v square. ये हमारे पास फॉर्मूला है. तो this is the formula of the quotient of two functions we will use here. So now for writing the derivative of fx, तो normally हम क्या करते हैं कि df x upon dx, तो either write this और या ऐसे लिख सकते हैं. So first square of differentiate of the numerator. In the numerators we have sine two function. This is a composite function, sin and ax plus b, sine function and sine functions and ax plus b with the algebraical function. So first differentiate, we have to differentiate first sine. Differentiation of sine will be cos ax plus b dot, and the differentiation of ax plus b will be d upon dx ax plus b and into denominator which is a cos of ax plus b minus differentiate of the numerator. न्यूमरेटर का हम डिफरेंशिएशन कर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे एंड न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा. तो रिटर्न्स द न्यूमरेटर एज इट इज sin ax plus b and the differentiation of the denominator, that is d upon dx cos of ax plus b. तो ये मेरे पास हो गया एंड डिवाइडेड बाय square of the denominator, cos of cx plus d its whole square. तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पे मैंने आई हैव डिफरेंशिएट ऑफ cos x डायरेक्टली मैंने डिफरेंशिएट कर दिया. वी कैन डू लाइक दिस ऑल्सो. अगले स्टेप में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इसको. सो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ दिस वन. So now the value comes out here. Differentiation of sine will be cos of ax plus b and यहाँ पे sine का differentiation हो गया. Now the differentiation of ax plus b will have only a. तो ax plus b will have a and b is a constant function which is 0 and dot cos of ax plus b this is not ax plus b, it is the cx. Cx is the part of the denominator minus sine of ax plus b dot. अब यहाँ पे क्या है, दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन. फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ cos and into the differentiation of ax plus b. cos का डिफरेंशिएशन we will have cos का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन, this is cx plus b into cx plus b. cx into cx plus b, another algebraical function. Its differentiation is cx has only c and b का हो गया 0. this is bracket is closed divided by square of the denominator which is cx plus d and ds. Now simplification of this will be, now this is a plus 0 will be a आगे आ जाएगा and it comes out a times cos
ax plus b dot cos of cx plus b, cx plus b, and here is minus, minus into minus will be plus, तो sin ax plus b, तो यहाँ से c आगे ले लेते हैं हम लोग, टेकन before that, and the sin c times of sin ax plus b, sin ax plus b dot sin cx plus b, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द, इसको हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट दिस कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये हमारा पास एक्सप्रेशन हो जाएगा। एंड नाउ चेक वेदर देयर इज कोई चीज़ कॉमन है कि नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है इन द न्यूमरेटर पार्ट, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कोशेंट फंक्शन। नाउ अगला क्वेश्चन हमारे पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एंड हियर इज ऑल्सो, तो सेपरेटली ये दिस इज ऑल्सो कंपोजिट फंक्शन, ये भी हमारे पास कंपोजिट फंक्शन है। बेसिकली इन द कंपोजिट फंक्शन वी डिफरेंशिएट दोनों का, यहाँ पे लाइक cos x क्यूब, cos x क्यूब का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो cos का अलग से करेंगे, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब अलग से करेंगे, तो यहाँ पे दो फंक्शंस हैं। एंड सिमिलरली साइन हमारे पास इसको हम बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक तो x के पावर 5 हो गया, एंड दूसरा साइन x फंक्शन हो गया, तीसरा स्क्वायर ऑफ द साइन x हो गया। तीन फंक्शन का एक कंपोजिट है, दिस टर्म इज कंपोजिट ऑफ 3 फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, ईच फंक्शन का हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच फंक्शन, तो यहाँ पे 3 फंक्शन का सेपरेटली हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, देन मल्टीप्लाई इट वन, देन यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, तो दिस यूज दिस प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएट ऑफ u डॉट v, इफ u एंड u डॉट v आर टू फंक्शन हमारे पास है, तो डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डॉट सेकंड फंक्शन एंड प्लस first function differentiate of second function, it will be our product rule, differentiation of product of two functions, ये हमारे पास हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। so तो here तो individually if I differentiate cos x के पावर 3, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, it is a composite functions using the chain rules, इसको डिटेल में एलेबोरेटली हम नहीं लिखेंगे इसको। नाउ जस्ट डिफरेंशिएट ऑफ कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स क्यूब, एंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विल बी 3x स्क्वायर, ये वाला हमारे पास हो जाएगा। इन दिस वे वी कैन राइट दिस वन। तो सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, तो यहाँ पे भी ये 3 फंक्शन का कंपोजिट है, साइन एक्स के पावर 5 का होल, तो इसका डिफरेंशिएशन व्हेन वी डू इट, तो हियर फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर टर्म का हम कर लेते हैं, साइन एक्स के पावर 5, सपोज साइन एक्स पावर 5 इज ए सिंगल टर्म, इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स के पावर 5, तो पावर में 2 माइनस 1 इनटू, नाउ तो साइन एक्स के पावर 5 का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया दिस वन, नाउ साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, नाउ cos x के पावर 5 एंड इनटू x के पावर 5 का हमारे पास हो जाता है 5x की पावर 4। तो इन दिस वे वी हैव डिफरेंशिएट दिस कंपोजिट फंक्शंस। सो हमारे पास चेन रूल, हमारे पास यूजिंग द चेन रूल लाइक df अपॉन dx, अगर हमारे पास f इज ए कंपोजिट फंक्शन, अगर मैं कहूँ कि fx मेरे पास 3 फंक्शन का कंपोजिट है, 3 फंक्शन का कंपोजिट है, तो वी विल डू इट हियर लाइक df अपॉन dx
df upon dw, dw upon dv into dv upon dv upon du। तो ये मेरे पास हो जाएगा ना। फाइनली इट कम्स आउट dw। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन आ जाएगा ये u इन टर्म्स ऑफ du अपॉन dx आ जाएगा। हमें du अपॉन dx निकालनी है। सो तो इन दिस वे df अपॉन dx विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल फंक्शंस को हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाइड कर दिया। सो सेम थिंग आई डिड हियर। सो नाउ यूजिंग द प्रोडक्ट रूल, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं एंड दिस इज अ differentiation of f dash x. F dash x means differentiation of fx, the derivative of fx at x. Now first one differentiate of first function, its differentiation will be this one. If I write this d upon dx cos x की power 3 into second function as it is sin square x की power 5 एंड प्लस फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही आएगा x की पावर 3 डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये मेरे पास हो जाता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंशिएट दिस वन सीधे हम पुट कर लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विल बी दिस वन माइनस साइन एक्स की पावर 3 डॉट 3x square into next term sin square x power 5 and now plus cos x power 3 into इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास आ गया था दिस टर्म 2 टाइम्स ऑफ साइन की पावर साइन x पावर 5 into cos x पावर 5 into 5x power 4। जस्ट सिंप्लीफाइड इट, इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। तो सबसे आगे रख लेते हैं इसको। तो 3x की पावर 3x स्क्वायर डॉट साइन x पावर 3 डॉट साइन स्क्वायर x पावर 5 बार माइनस है हमारे पास। नाउ ईयर 5 into 2 is 10 plus 10, 5 into 2 is 10, 10x की पावर 4, 10x की पावर 4 एंड रिमेनिंग टर्म हमारे पास हो गया दिस वन cos x की पावर 3 डॉट sin x की पावर 5 डॉट cos x की पावर 5। अब यहाँ पे देखते हैं कि एनी टर्म्स आर कॉमन। तो these are the two टर्म, फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है। तो देखते हैं कोई टर्म कॉमन है कि नहीं है ना। एक्स स्क्वायर इज कॉमन, टेकन आउटसाइड एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट एक्स क्यूब एक्स की पावर 3 साइन एक्स पावर 3 नॉट कॉमन, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। तो ये हमारे पास कॉमन है। इसमें से एक टर्म बाहर निकाल लेंगे। सो टेकन साइन एक्स की पावर 5 टेकन आउट, इनसाइड हमारे पास हो जाता है -3, ये बाहर आ गया था एंड ये इसमें से एक फैक्टर बाहर आ गया था। नाउ रिमेनिंग फैक्टर्स आर हियर साइन x3 डॉट साइन x की पावर 5 एंड हियर प्लस। तो इसमें से हमारे पास x की पावर 2 बाहर आ गई, तो 10x स्क्वायर एंड इट दीज टू रिमेन हियर cos x3 dot cos x power 5। तो नथिंग इज कॉमन अब हमारे पास। सो दिस इज अवर फाइनल एक्सप्रेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस एनसीईआरटी बुक्स
रिटन बिफोर डूइंग द सॉल्यूशन। तो सबके लिए बेनिफिट है, ऑल स्टेट बोर्ड्स, ISC एंड अदर एग्जामिनेशंस लाइक IIT-JEE। तो इंडिविजुअली हैव रिटन the questions and then solution of it one. Now पहला क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास अगेन ये कंपोजिट फंक्शंस है। कंपोजिट फंक्शन मीन्स ये दिस फंक्शन मेड ऑफ 3 फंक्शन का कंपोजिशन है यहाँ पे। तो हम इंडिविजुअली क्या करेंगे, ईच फंक्शन का डिफरेंशिएट, देन द फाइनल आंसर विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ईच डिफरेंशिएशन। तो सबसे लेट अस डू। तो एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2 इज आउटसाइड, 2 बाहर हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स इन दिस वे कॉट एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिख लेते हैं। दिस इज अवर सिंप्लीफाइड फॉर्मेट, the simplified format. First do the differentiation of the power। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x की पावर अंदर डिफरेंशिएशन करेंगे dx, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला हियर n x इक्वल n माइनस 1। सो ये हो गया मेरे पास, 2 इज ऑलरेडी हियर, 2 टाइम्स 1 बाई 2। सो यहाँ पे cot x स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ माइनस 1। तो इसकी जो पावर हो जाएगी मेरे पास हाफ माइनस 1 हो जाएगी, यस, इनटू सेकंड मेरे पास हो जाता है कॉट का डिफरेंशिएशन। सो कॉट का डिफरेंशिएशन करेंगे यूज डी अपॉन डी एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस कॉशेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉशेक स्क्वायर एक्स। सो कॉट का हो गया मेरे पास माइनस कॉशेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉशेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे टर्म मेरे पास एक्स स्क्वायर था, तो कॉट का हो गया माइनस कॉशेक स्क्वायर एंड ईयर अनदर फंक्शन एक्स स्क्वायर है इनटू, अब एक्स स्क्वायर का अगेन एक्स पावर एन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ये मेरे पास हो गया फाइनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे हमने इंडिविजुअली ईच फंक्शन का डिफरेंशिएट किया एंड फाइनली मल्टीप्लाइड ईच वन, दिस इनटू दिस। नाउ जस्ट सिंप्लीफाइड दिस, इसको सिंप्लीफाइड हो गया तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x बाहर ले लेते हैं, तो माइनस 2x इज आउटसाइड एंड हियर ये पहले लिख लेते हैं कॉशेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड इट्स पावर हाफ माइनस हाफ हो जाता है, इट बिकम्स cot एक्स स्क्वायर की पावर हाफ को लिख लेते हैं रूट ऑफ दिस वन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। सो हमारे पास सेम वे वी कैन डू इट। तो एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट cos रूट एक्स, cos ऑफ रूट एक्स। तो दिस फंक्शन इज ऑल्सो कंपोजिट। तो कंपोजिट को हम क्या कहते हैं, यूजिंग द चेन रूल। नाउ यहाँ पे एक दो फंक्शन से बना हुआ है, तो cos एंड एक्स पावर n टाइप फंक्शन है। नाउ इट्स डेरिवेटिव विल बी एफ डैश एक्स या सिंपली df ऑफ x अपॉन dx। तो यहाँ पे cos का डिफरेंशिएशन विल बी माइनस साइन एंड अनदर फंक्शन इन द ब्रैकेट एंड x रूट x का हो गया हमारे पास d अपॉन dx रूट x। नाउ फाइनली इट बिकम्स माइनस साइन रूट x एंड इनटू x पावर हाफ यूजिंग दिस फॉर्मूला हियर। तो हाफ आगे आ जाएगा x की पावर हाफ माइनस 1। जस्ट सिंप्लीफाइड इट, its simplifications will be minus sine of root x divided by 2 times of this one, so 2 times of root x। तो ये हमारे पास this is the answer of this one।
Question number 9, prove that the function fx, here x belong to the set of real numbers domain not differentiable at x is equal to 1. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मॉड हटा लेते हैं एंड तो चेक करते हैं ये इसका क्या इंटरवल्स है, किस इंटरवल में क्या फंक्शंस है. नाउ इट्स अ सॉल्यूशन विल बी नाउ हियर fx. तो यूजिंग दिस फॉर्मूला mod x इज इक्वल टू हो जाता है x when x ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड माइनस x हो जाएगा. सो mod x विल बी माइनस x फॉर x लेस देन 0. इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम लोग. सो नाउ fx इज इक्वल टू mod x माइनस 1. mod x माइनस 1, तो यहाँ पे mod x इज इक्वल टू x, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे mod के अंदर किसी यहाँ पे लिखेंगे राइट हियर x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0. तो एज इट इज एंड 1 को राइट पे ले लेते हैं एंड दिस बिकम्स x ग्रेटर और इक्वल टू 1. तो ब्रेकिंग पॉइंट मेरे पास ऑन द नंबर लाइन इज 1 एंड सेकंड वन mod x इज इक्वल टू माइनस x. सेम थिंग इज हियर. सेकंड पॉइंट हो गया मेरे पास mod x minus 1 इज इक्वल टू माइनस बाहर से आ जाएगा x माइनस 1 एंड mod x लेस देन 0. mod के अंदर मेरे पास x माइनस 1 है, तो देयरफॉर x माइनस 1 लेस देन 0 इम्प्लाइज x लेस देन 1. तो ये मेरा दिस इज द ब्रेकिंग पॉइंट हो गया. 1 पे आपको चेक करनी है बिकॉज 1 से बड़ा एल्जेब्रिक फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल्स. तो 1 से बड़े के लिए कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा एंड 1 से छोटे 1x बराबर लेस देन 1, तो ये हमारे पास दिस इज द एल्जेब्रिकल फंक्शन, तो इट विल बी डिफरेंशिएबल. ओनली द पॉइंट वेयर द फंक्शंस ब्रेक्स दैट इज द x इज इक्वल टू 1 पर हमारे पास ब्रेकिंग पॉइंट मेरे पास है. तो हमें चेक करना वेदर इट इज डिफरेंशिएबल एट 1 और नॉट. अदर पॉइंट्स पे अदर रीजन के लिए इट इज डिफरेंशिएबल बाय द डेफिनेशंस ऑफ द डिफरेंशिएबिलिटी. सो नाउ इसके लिए हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. गो फॉर द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1. वैसे भी हमको x बराबर 1 पे चेक करना था. आई हैव एक्सप्लेन इट क्यों ये 1 पे कह रहा है. नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. नाउ द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वी आर अप्रोचिंग 1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. इट कम्स और लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस करेंगे by approaching 1 from the left hand side. तो here fx माइनस f1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ये हमारे पास हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. तो यहाँ पे x माइनस का मतलब है x लेस देन 1. x लेस देन 1 के लिए फॉर x लेस देन 1 आवर फंक्शन इज दिस वन. तो ये फंक्शन है मेरे पास, दिस द फंक्शंस राइट हियर. तो माइनस x माइनस 1 माइनस f ऑफ 1 इक्वालिटीज के लिए x इक्वल 1 के लिए ये फंक्शन हो जाएगा. इट कम्स 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1. तो बाहर से हमारे पास लिमिट लगा हुआ है. सो नाउ आउटसाइड ऑफ दिस वन इज लिमिट, जस्ट माइनस छोड़ सकते हो आप. तो x टेंड्स टू 1 आ गया. नाउ सिंप्लीफाइड इट. लिमिट x टेंड्स टू 1, so just simplified minus x and plus 1 and this is cancel out divided by x minus 1. तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस इज टेकन आउट, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, x टेंड्स टू 1. तो ये कैंसिल आउट हो गया. द वैल्यू कम्स आउट माइनस 1. सो नाउ अवर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज माइनस 1. फॉर कमिंग फॉर द राइट हैंड डेरिवेटिव इट विल बी now the right hand derivative of this expression, right hand derivative, first written the formula x 1 plus and सेम चीज आ जाएगी हमारे पास fx minus 1 upon x minus 1. this is the definitions from the definition of the derivative. now x less than x greater than 1 के लिए मेरे पास function for x greater than 1 our function is this. तो we are writing here x tends to 1 x minus 1 minus f of 1. f of 1 के लिए x equal to 1, this equalities put x is equal to 1 minus 1 divided by
simply 1 minus x minus 1. Now this is a limit x tends to 1, तो here x minus 1 ये कैंसिल हो गया, सिंपली x minus 1. तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाता है +1. तो यहाँ पे we will see here our right hand is equal to +1 and our left hand limit is equal to -1. Therefore, तो right hand derivative not limit, right hand derivative not equal to left hand derivative. अगर बराबर नहीं है, we say that fx not differentiable at fx is not differentiable at x is equal to 1. Now काफी important question है, greatest integer functions fx not differentiable at -1 and 2, not differentiable at +1 1 and 2. अब ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होता क्या है, तो हमें क्या करना है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शंस अगर फ्रॉम 0 to 3 मैं डिफाइन करूं, इफ आई डिफाइन फ्रॉम 0 to 3, अगर मैं सारा ओपन करूंगा 0 से 3 तक हमारे पास ग्रेटर इंटीजर फंक्शंस, तो हमें क्या करना है, greatest integer functions. Suppose we consider between 0 and 1. Between 0 and 1 हमारे पास जो greater integer function हो जाएगा वो मेरे पास 0 हो जाएगा in the number line. तो this is our number line, ये 0 and this is 0, this is 1, this is -1 and so on. ये 2 हो गया, ये 3 हो गया. सो अगर हम नंबर्स को कंसिडर कर रहे हैं फ्रॉम 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जी फ्रॉम 0 to 1 इट्स वैल्यू बिकम्स यस. सो इन दिस इंटरवल से 0 से 1 के लिए इस रीजन के जितने भी रियल नंबर्स हैं उनसे छोटे जो इंटीजर्स हैं उनमें से सबसे बड़ा विल बी आवर आंसर. तो 0 बिटवीन 0 to 1, तो इस वाले रेंज में हमारे पास इफ आई कंसिडर इन दिस रेंज, तो इससे नीचे जो हमारे पास इंटीजर्स हैं जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन टिल -इनफाइनाइट, उन सब में सबसे बड़ा मेरा 0 होता है. तो ये आई हैव रिटन दिस वन. तो नेक्स्ट इंटरवल मेरे पास आ जाता है 1 से लेकर 2 तक. 1 से लेकर 2 तक के लिए आते हैं, क्वालिटीज एक में डालना पड़ेगा, दिस इनइक्वालिटी नॉट हियर, तो इनइक्वालिटी यहाँ पे मैंने डाल दिया. सो 1 से लेकर 2 तक इफ आई कंसिडर द रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स उनसे छोटा, इन रियल नंबर में से छोटा जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें सबसे बड़ा इंटीजर्स, तो बिटवीन 1 and 2 इफ आई कंसिडर्स, सो इससे छोटे 1 and 2, 1 हो गया 0 -1 -2 एंड सो ऑन टिल -इनफाइनाइट. देयर आर मैनी इंटीजर, उन सब में सबसे बड़ा है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा इस वाले केस में 1. नाउ द नेक्स्ट इंटरवल इज x 2 से लेकर 3 तक. 2 से लेकर 3 में हमारे पास जो इस दीज रियल नंबर से नीचे जो इंटीजर्स हैं 2 है, 1 है, 0 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 एंड सो ऑन फॉर दिस इंटरवल के लिए. सो नाउ जो सबसे बड़ा इंटीजर्स मेरे पास आ जाता है वो 2 आ जाता है, दिस इज द 2. तो ये मेरे पास हो गया, दिस द वैल्यू ऑफ दिस वन. सो नाउ वी कंसिडर वन पे चेक कर लेते हैं. फर्स्ट फाइंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 and 2, 1 by 1. नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आते हैं at x is equal to 1. So the basic formula, x tends to 1 minus fx minus f of 1 divided by x minus 1.
सो 1 से छोटे के लिए फंक्शन मेरे पास 0 आ जाता है राइट हियर. लिमिट x टेंड्स टू 1 0 f of 1 इक्वालिटीज यहाँ पे व्हेन x इज इक्वल 1 द वैल्यू कम्स आउट 1 डिवाइडेड बाय x minus 1 divided by x minus 1. So now x minus 1 इसकी जगह हमको रखना पड़ेगा this greater integer function. Greater integer functions for less than 1 के लिए 0 आता है. So this value becomes 0. Now finally minus 1 limit x tends to 1. Minus 1 upon minus will be 1. Now for the right hand derivative. Right hand derivative at x is equal to 1 will be limit x tends to 1 plus f of x minus f of 1 divided by, तो यहाँ पर हमारे पास ये रखना पड़ेगा. यस. सो नाउ ग्रेटर देन 1 के लिए 1 रखेंगे. लिमिट x tends to 1 and f of x has this one value, and for equalities x is equal to 1 again 1 हमारे पास आ जाता है, and greater integer function between 1 and 2 is 1. the right is 1 minus 1 1 minus 1, तो ये not defined आ गया. this comes out not defined, तो 0 by 0, तो 0 by 0 indeterminates है. 0 by 0 known as indeterminate, so it is not defined. So it is not defined. So left hand derivative, तो इस तरह से these are not equals. We can say that derivative not differentiable. तो automatically left hand derivative 1 आ गया, right hand side not defined आ गया, तो fx not differentiable. fx not differentiable at x is equal to 1. Now let us do same way for differentiability at x is equal to 2. So we have to check differentiability at x is equal to, write the formula left hand derivative at x is equal to formula x tends to 2 minus f of x minus f of 2 divided by x minus 2. So this comes from the definition of differentiability. Less than 2 our function is fx is 1, therefore x tends to 2, fx will be 1, and f of 2 x is equal to, quality is here minus 2, and this is the greater integer function. So greater integer functions between less than 2, 1 and 2 is 1, so this is 1 minus 2, so 1 minus 2 it is a 1. Limit x tends to 2 to minus 1 upon minus, this becomes 1. So now for the right hand derivative आते हैं. right hand derivative at x is equal to, now the value limit x tends to 2 plus f of x minus f of 2 and the greater integer functions minus 2. So now greater than 2 के लिए हमारे पास fx replaced by 2, तो इसकी जगह 2 रखेंगे हम लोग. now limit x tends to 2 and for the equalities x बराबर 2 again 2 minus 2 0, and for
x 2 से 3 के लिए मेरे पास ये वैल्यू 2 है, तो अगेन ये मेरे पास आता है 0/0 विच इज इनडिटर्मिनेट। तो ये मेरे पास इसको कहा जाता है इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट ऑल्सो वी से दैट नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड, एक पार्ट हमारे पास डिफाइंड है, वैल्यू में आपका 1 आ गया, दूसरे पार्ट में डिफाइंड नहीं है, ठीक है। सो वी से दैट fx therefore fx not differentiable at also at x is equal to not differentiable, not differentiable at x is equal to। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर एक्सरसाइज 5.2 एंड अगले वीडियो में मिलते हैं एंड प्रैक्टिस a lot of and also remember the concept of differentiability।